Thank you so much. Yes. Okay. Live शुरू करेंगे पारुल? पारुल तुम 10-15 मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा है. I'm going live also. Okay. मैंने स्क्रीन शेयर की. Okay. So good afternoon, everyone. To all gorgeous ladies, I wish this afternoon to be filled with love, light, and happiness. So on behalf of Association of Medical Women Nagpur, I, Dr. Smita Pakmode, and with me, Dr. Payal Agrawal, extend a hearty welcome to you all on most awaited training session, that is Dil Pe Matle Yaar. Dil Pe Matle Yaar, this session is a part of a Women Wellness Wheel that is going to be launched today only. And we will be addressing emotional well-being in the first session of this Wellness Wheel. It's our honor that, ma'am, let me share my slide. Yeah, you can. Yeah. Thank you so much. So it's our honor that Association of Medical Women Nagpur to have esteemed chief guest Dr. Yamini Alsi ma'am, President of Association of Medical Women in India, as a chief guest, and Dr. Geeta Bal Sarkar ma'am, President of Association of Women Medical Women Nagpur, and editor-in-chief of Jogi, as a guest of honor. And to the top of it, we have the precious gemstone from Association of Medical Women, our very own member, Dr. Meena Mishra ma'am, as a speaker. So I welcome you all to this August platform, and I wish all dignitaries to join for the lamp lighting. ख्वाहिश से गिरते नहीं फूल झोली में, ख्वाहिश से गिरते नहीं फूल झोली में, वक्त की शाखा को ए दोस्त हिलाना होगा, वक्त की शाखा को ए दोस्त हिलाना होगा. कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से. अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ेगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ेगा. Let's seek this illumination by lighting a lamp inside our body, our soul, as we firmly believe that true light lies within. Thank you so much for all dignitaries for joining Samay Lighting. Now it's time for address of our dynamic lady leader, President of Association of Medical Women in Nagpur, Dr. Lakshmi Shikhande Ma. As she is a true leader by example, and if you see at her CV, you can get an idea how many associations she led with her excellence. All associations are either academic or the social forum. She has proven her excellence everywhere. At the top, she is a chairperson or designate of ICOG, that is Indian College of OBGY, a national corresponding editor journal of OBGY of India, that is Jogi. Ma'am is a proud recipient of Bharat Excellence Award for Women's Health and received Meheru Dara Hensotia Best Committee Award for her work as a chairperson of HIV/AIDS Committee for FOXI in 2007-2009. She has numerous publications to her kitty, and she has attended many conferences and presented poster and papers there. Now I invite ma'am for her welcome address. Thank you, Smita. Thank you so much for those kind words of introduction. Respected teachers, invited guests, dear friends and colleagues. Good evening to one and all. I welcome our National President, Dr. Yamini Arshi, the President of Association of Medical Women, Mumbai branch, Dr. Geeta Bal Sarkar, and eminent national trainer and guest speaker, Dr. Meena Mishra. I also welcome you all who have taken time out of your busy schedule to attend our webinar on wellness, women wellness, and that too emotional wellness. We all take it for granted. Whenever we talk of women wellness, we always talk of our physical health. हाँ, योगा कर ले, meditation कर ले, walking कर ले.
but it has got many other aspects, many facets to the woman's wellness. So when Dr. Payal was discussing with me, she is our young dynamic member, I told her, let us do it in a systematic way. And I'm so happy that she came out with this novel idea and she designed this woman wellness wheel. And we are going to take one aspect at each webinar for the overall wellness of the woman, not only emotional or physical. There are many aspects, spiritual, financial, her personal development. So there are many aspects and we will be taking one by one. So friends, stay tuned to us. We will be posting you the detailed information about these wellness webinars and we look forward to all of you to join us for these webinars. Once again, I welcome you all for this today's webinar. Smita, back to you. Thank you so much, ma'am. Now I request Dr. Payal to introduce our guest of honor, Dr. Geeta Balsarkar, ma'am. Thank you so much, ma'am. A lady who believes that winners never quit and quitters never win. Ma'am is MBBS, MD, Ops and Gynecology, DGO DNV, FCPS, Ops and Gynecology. She is Editor-in-Chief, Journal of Obstetrics and Gynecology of India, Librarian of Mumbai Ops and Gynae Society 2021, President AMW Mumbai Branch 2021, President of Menopause Society Mumbai Branch 2021, Chairperson of Young Talent Committee, FOXY from 2014 to 2016, recipient of the prestigious Har Gobind Foundation for the Study of Fetal Medicine in 2008, Professor of SAIT GS Medical College and Nauroji Vaidya Maternity Hospital. Now let me take the privilege to welcome the super dynamic lady and today's guest of honor, Dr. Geeta Balsarkar ma'am. I, Dr. Payal Agrawal, along with my whole team of AMWN, heartily welcomes you, ma'am, and I kindly request you to share your pearls of wisdom with all of us. Thank you, ma'am. The whole idea of having an association of medical women was established many, many years ago, at the time when medical studies for women itself were very, very difficult. So women themselves realized that they have to take care of other women doctors and children. Therefore, Association of Medical Women in India was born with a aim of taking care of women, the women doctors and the children. So this is nothing, unfortunately, in those days, the thinking was not so clear. They did not have a wheel, but they did have something like in their mind, which led to the better, emotional and mental strength of women those days. Just to pursue medicine itself was so difficult, then women needed strength from other women doctors. And this association was first established at Kama and Albalas Hospital in Mumbai. So I'm very, very proud to say that, I'm representing a group of women doctors who have worked very strongly for other women doctors and children. Till date, this remains the motto of Association of Medical Doctors of India, that women for other women and children. And to take this one step ahead, Dr. Lakshmi Shrikande, along with her team, they have come up with this wheel which mentions the various aspects of the women's health, mental, emotional, physical, financial. And I'm sure she's going to add, other than this one ring, she's going to go on adding more rings to that as more and more aspect of women's life comes into focus. But one thing is for sure, women themselves have to support the other women. But what we see in most families is that mother-in-law treating daughter-in-law badly. It is women themselves who treat other women badly. This definitely needs to stop. Okay, so this is one important aspect. Now, what you have identified 4 or 5 key areas of where women need support for their change or their well-being. And I'm sure we can go on adding more aspects as time passes by, so that we all can support and come up and rise with each other. Thank you. Thank you so much, ma'am. Every woman deserves her wellness. It is said that health is a state of body, but wellness is a state of being. Keeping this in mind,
we wanted a woman to get wellness in all the 6 dimensions of life, that is physical, emotional, financial, social, spiritual, and academic. So we came up with an idea of Women's Wellness Wheel, which includes all the 6 dimensions to improve a woman's overall personality. Our today's session is of emotional wellness, and we have planned to take one wellness session monthly. I would like to invite our guest of honor, Dr. Geeta Balsarkar ma'am, to kindly unveil the banner of the same. Thank you so much. Dr. Geeta, I fully agree. We will go on adding because this is not all what we have presented today. A woman has got many facets, and as you rightly said, we have to be there for the welfare of the woman, and that is why we have taken our theme only as we for she. So we will definitely add more and more wheels to this, and we will try to cover as many aspects of women's wellness as much as possible. Thank you so much for gracing the webinar and unveiling this Women Wellness Wheel. Thank you so much, Dr. All the Geeta. best, Lakshmi, for your Thank future you. endeavors. And I hope you complete these and next year you come Yes. up with more issues that Yes. Thank you. Thank you. Over to you, Smita ma'am. Integrity, insight, and inclusiveness are the three essential qualities of leadership. And here I am going to present before you example of these three qualities. And that is Dr. Yamini Alsi. Dr. Yamini Alsi ma'am, a consultant gynecologist in Indian Cancer Society in Nagpur, and she is present president of Association of Medical Women in India for 2020 and 2022. She has been a past president of NOGS, then NARCHI, and AMW in Nagpur. She is a proud recipient of Dr. Khandelwala Prize of Best Paper NOGS, and she is a recipient of Dr. S. Aptekar Award in 2003 and Advani Braganza Oration 2007 from AMWI Mumbai branch. So with this short introduction, I would invite ma'am to share her pearls of wisdom. Thank you, Smita, for your kind words. It was nice pleasure to meet you on 15th August Yes, and ma'am. in person. Yeah. And I first congratulate Lakshmi and team for organizing such a wonderful program today. And as Geeta has already explained about our association, AMWI, it is now 114 years old. Organization, oldest organization you can say in India and also in internationally. International body is just 100 years. Now you can say 101 years old, Medical Women's in International Association, but we are elder to them also by 10 years you can say. So it was started with this, there was some inequality at the time of when it started, even as Geeta has already explained, so I will not go in detail. But main thing was, and also there was no particular that one branch, it was the collaboration of all the branches, specializations, all the doctors, so that they can come together, discuss the problems and they go ahead. And there will not be any inequality, there will be disparity between appointments. And now today, yesterday it was NDA's examination, the girls were allowed. So it is an one feather in our cap, you can say the girls are allowed to appear for the NDA exam, National Defense Academy. So we are going ahead, but still some class is still going down because we can see in rural areas they are not getting more, and because of the COVID we are going again backwards, I think, because of the domestic violence has increased and so many facilities are not available. So anyway, we are coming out of this. So wellness, as you had said, yes, wellness is doesn't mean only wellness means physical wellness. It is an all round wellness, physical wellness, emotional, spiritual, financial,
because women have to be financially sound, otherwise they have to, many of the women are dependent on, if they want to go anywhere or they want to buy purses, they have to ask for the money from the husband or family members. So in government of India has already sanctioned that all the girls and boys, sons and daughters are equally, what do you say, are part of this. If there is any communication, so the girls are also equally now right to the property of the parents. So we are going ahead little by little, but still we can find there is very much inequality. So this is, and also academically or professionally we have to have, because many times we find that professionally also women are not treated well. So we want to go ahead with that. And today's, you say that we are going to inaugurate bulletin, which we have started. I must congratulate Lakshmi and the team for the same. And Mumbai branch. 1 minute. Can you hear me? Yes, Yes, madam. Yes, Yes. My picture has gone. No, we can hear you, madam. We Okay. can see you. we can see your picture also. Okay, okay. And Mumbai branch is having regularly newsletter, printed everything. Geeta didn't mention, but we do have Mumbai branch, and now Nagpur branch has also started a bulletin. So maybe it is yearly or monthly. I don't have any idea about it, but maybe it will be at least yearly, so that we can know about what is going on in Nagpur branch, as we do it in Mumbai branch. Madam, it is quarterly. Every 3 It is months we are quarterly. coming out with Good. one newsletter. Yeah. Geeta, it is your yearly, no? Newsletter. Yeah, we do yearly, madam, Yearly, once yeah. a year. Yeah, Ours is because- quarterly on focused issues. I mean, focused women's issue. So I will really congratulate you for the same. And about the today's trainer, I must say that I really appreciate you have chosen the right person for this today's session, Meena. I Yes. know how she has gone through all these things, and she had come out of all the miseries and everything. She has faced so many financial, physical, emotional. So she had gone through all the phases, and she has come, and we can see her now. And you won't recognize that she is the same lady, which was nearly 10 years back. So I must congratulate AMWN team for recognize the person who can really treat you or tell you what is wellness. And I appreciate the things, and I had to open bulletin. Great bulletin. Yeah. Thank Yes, you ma'am. for inviting me for the same. Yes. Thank you so much, ma'am, for your valuable advice. Now, here I would like to invite you to release our e-bulletin, that is post issue COVID Gatha. And the editor of this journal is Lakshmi Shikhande ma'am, and chief editor is Lakshmi Shikhande ma'am, and editors are Aarti Dharaskar and Radha Munje ma'am. So I'll request everyone to please join for unveiling of this e-bulletin. Radha Munje ma'am, are you there? Can't see her. Aarti is there. Okay. Yeah. Good. This is our first newsletter. And second, we are coming on mental health, madam. Okay, good. Abha has taken over this. no? Abha is Okay, in yes. charge of that newsletter. Radha is not there. Uh, Geeta, I would like to introduce Radha. She is going to be our orator for Nirmala Mukadam oration for SARC conference. Yeah, thank you, thank you. Okay. आज तो छुट्टी Thank है. you. She must be busy somewhere. हाँ. Yes, ma'am. She is busy in the installation ceremony, but she had promised me to join. But I think maybe She could not. network issues. There are So she so could many not join. functions today. Yes, ma'am. Yeah, I know. But Arshi madam, I must thank Dr. Radha Munje and Dr. Aarti Dharaskar Yes, for yes. coming out with this beautiful newsletter. It has got very practical topics on COVID, which will be of interest to each and everyone. And it has also all our 3 monthly report, what the AMWN has done. It's a PDF copy. We are not printing it. So we will be circulating it to all the members. So please go through it. This Yes, is sure. our first news bulletin on COVID. So hence it is named as COVID Gatha. Okay, good.
Hello. Okay. Thank you so much, ma'am. And dear friends, please, ma'am, I'm audible? Yes, Yes. yes. Okay, yeah. So thank you so much. And dear friends, please wait for this copies. Yeah, this PDF will be circulated to you all, and you will get all insight about the vision of MWN as well as everything about the COVID, right from the management, from early to mild cases and complications is different. The therapy like physiotherapy and even the you can see the impact, that is socio-economic impact of COVID on the society is also discussed in this issue. So please please read this bulletin, and I think you will Sure. find it interesting. And Thank you so much, share ma'am. your feedback. Yeah, we Yes, ma'am. encourage to have your feedbacks. Yeah. Yes. Okay. So it is said that it's no duty is more urgent than that returning thanks. So I know session is still not over, but I would like to pay my thanks from my bottom of the heart to our chief guest and guest of honor for sharing your views and sparing your valuable time for us. Ma'am, I would like you, both of you, to stay back and please attend the session. But now for it's like a miniature pause. It's thanks for you, and we are again having vote of thanks in the last. So please be there till the session is over. So now we are moving forward with today's session, that is Dil Pe Matle Yaar. And I'm excited because the trainer is really you can see it is our own from the our own fraternity. और कहते हैं ना, जैसे मैम ने बोला, यामिनी आलसी मैम ने, कहते हैं जीवन जितना कठिन हो, कहते हैं जीवन में जितना कठिन संघर्ष हो, जीत उतनी ही शानदार होती है. एंड यू कैन सी this lady is a sure example of this thing. So every one of us knows ma'am. She is a beloved member of our association. But for formal introduction, I'll invite Payal Agrawal for introducing ma'am, Meena Mishra ma'am. Thank you so much, ma'am. Our today's trainer is a lady who believes the strongest action for a woman is to love herself, be herself, and shine amongst those who never believed she could. Ma'am is MBBS, MD in microbiology, presently Professor and HOD of microbiology, AIMS Nagpur, worked as in charge of integrated counseling and testing center at CD4 lab for the HIV positive patients, has 24 research publications in national and international journals, around 54 guest lectures in national conferences and CMEs. She is an active faculty of medical education unit in GMC Nagpur. She has won Best Poster Award at NIMECON 2005 and Ravi Puruskar for the Outstanding Trainer of Zone 9 JC. She is the Honorable Secretary of Indian Association of Medical Microbiologists 2014 to 2015, Life Member of Indian Association of Microbiologists and Indian Medical Association, Past President of Vidarbha Association of Microbiologists 2011 and JCI Nagpur, National Trainer of Indian JCs of JCs International. So ladies and gentlemen, please welcome our today's speaker, the very dynamic Dr. Meena Mishra ma'am. Very warm welcome from our whole team, ma'am. Thank you so much, Payal. Thank you, ma'am. Ma'am, now handing over our screen to Meena ma'am. And now, ma'am, you can share your presentation. I'll stop my presentation. Yeah. One second, I'll just start the screen sharing. Yeah. Is the screen visible? Yes. No. Yes, ma'am. It's visible. It's visible now? Yeah. Yes, ma'am. It's visible. Okay. So a very good evening, everybody. And first of all, I would like to express my deep sense of gratitude to Dr. Lakshmi Madam, to Dr. Smita, to Dr. Payal for the lovely creativity she had put in. Dr. Yamini Madam for those kind words. And with that, we move ahead with our training program, Dil Pe Matle Yaar.
जब आप लोगों ने ये नाम सुना होगा कि दिल पे मत ले यार, ऐसे बहुत बार हमारे सामने सिचुएशन आती है कि जहां पर हमें ये खुद को बोलने की जरूरत महसूस होती है, और दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कीप अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन विथ यू, क्योंकि हम लोग आगे एक्टिविटी में हम लोग अपना EQ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपको एक पेन और पेपर की पक्का जरूरत होगी। ओके, नाउ बिफोर वी मूव अहेड, एक बहुत ही मीनिंगफुल और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात कि अगर हमने अपने अंदर झांक के देखने की कोशिश की तो, एंड दिस स्पेशली होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द लवली लेडीज हु आर प्रेजेंट हियर, तो इसमें आपको सब लोग दिखाई देंगे सिवाय खुद के। और मतलब दिस इज the affair with almost every woman, may she be housewife, may she be a working woman. एक छोटा सा डे टू डे एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर, और वो एग्जाम्पल एक ऐसी सिचुएशन है कि इन सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस वी लैंड अप एवरी डे। एक मॉर्निंग का सीन है, एक हस्बैंड वाइफ है, उनका एक छोटा बच्चा है, और जैसे कि हर मम्मी को स्ट्रगल करना होता है कि वो बच्चे को दूध पिलाओ या खाना खिलाओ, और सवेरे के वो दोनों भी वर्किंग पेरेंट्स हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद द किड। वो बच्चा जिद करते करते ऐसे होता है कि he drops the milk, और वो मिल्क जाके गिरता है पिताजी के कपड़ों पे। Now there are two situations which can come out from this particular episode. Number one, कि वो पापा बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उस दिन उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। अब बच्चे ने दूध गिरा दिया तो उनको जाके कपड़े बदलना है एंड he is going to be late. He becomes very angry and he reacts strongly. अब पहले बच्चे को तो थोड़ा सा डांटने के बाद में ध्यान में आता है कि बच्चा तो बहुत छोटा है, इसको बहुत डांट के मैं क्या करूंगा। तो देन द नेक्स्ट सॉफ्ट टारगेट इज द मम्मी, और फिर वो जब मम्मी के ऊपर बात जाती है तो नेचुरली माइका वगैरह सब इन्वॉल्व हो जाता है, और बाद में फिर एक जो रेगुलर इसमें जो सीन होता है दैट फॉलोज। और ये सब चक्कर में ऐसे होता है कि वो मदर बच्चे को उठाती है, ले जाके कपड़े चेंज करती है, तब तक बस निकल जाती, फिर वो पापा को ही वो ले जाके बच्चे को छोड़ना होता है, वो बहुत एंशियस हो जाते हैं कि और ज्यादा लेट होते हैं, वो बच्चे को भी ड्रॉप करते हैं, तो ही डजंट से बाय टू हिज किड, और वो गड़बड़ में आगे जाते रहते हैं, तो ही क्रॉसेस द ट्रैफिक सिग्नल विद द रेड लाइट, तो वहां पर ट्रैफिक पुलिसमैन भी उनको पकड़ लेता है, फिर अगेन ही गेट्स लेट, फाइनली ही रीचेस द ऑफिस। वहां पर अगेन बॉस इज वेरी फ्यूरियस क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वो अब जब ये जस्टिफिकेशन कुछ देना चाहते हैं तो बॉस इज नॉट इन अ मूड टू लिसन एंड नॉट डज ही हैज टाइम, तो वो बोलते हैं कि आप तुरंत फाइल लेकर आओ। द मोमेंट ही पुट्स हिज हैंड इन द पॉकेट ही रियलाइजेस कि चाबी तो वो पैंट में रह गई जो मुझे चेंज करना पड़ा था। नाउ सिचुएशन नंबर 2 ऑफ रिएक्शन, कि दूध गिरने के बाद में नेचुरली वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो एक वो इमोशनल एक ये तो होता ही है कि अरे क्या मुझे आज जल्दी जाना था और ये ऐसे हो गया, बट देन ही ट्राइज टू पुट इन फोकस कि what is more important for him to reach the office on time, and then he instruct his wife कि मैं फटाफट ये बेबी कपड़े चेंज करके लेकर आता हूँ, but you see to it कि the school bus person he stops for another 2 minutes, और वो फटाफट पहले बच्चे को चेंज करके करते हैं, and he is focused upon his meeting which is his priority, so he doesn't forget to put the keys in another pant that he has to wear, and he says bye to his wife, to his kid, and then he goes to the office. He is late by 5 to 10 minutes, but at least he has kept the control over his emotions. तो उसमें मतलब इस तरीके का एक जो एक बहुत आउटबर्स्ट की वजह से बहुत सारे दूसरे जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, that he has saved. Now, this is a situation, but we land up in similar kind of situations every day. और किसी ना किसी एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, यहाँ पे वो बच्चा था, पर ऐसे बच्चे जैसे ट्रिगरिंग फैक्टर तो बहुत सारे हमारे लाइफ में आते हैं। अभी चैट बॉक्स में आई वुड लाइक टू हैव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू कि ऐसे दिन में ऐसी कौन कौन सी ऐसी बातें होती है जब हमको सही में खुद को बोलना पड़ता है कि दिल पे मत ले यार। आई वुड लाइक टू हैव योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स प्लीज।
ओके बट वन सेकेंड, हाँ ओके आपके रिस्पॉन्सेज, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं बना, ये तो एक बहुत कॉमन चीज है, ब्रेकफास्ट खाना लंच और पता नहीं मतलब इस तरीके की। हाँ वेरी गुड, if the maid doesn't come then our day starts in a very bad mood। और टाइम पर नहीं आई तो भी मेड प्रॉब्लम इज द कॉमनेस एंड द यूनिवर्सल प्रॉब्लम। हाँ और उसके बाद में हाँ if we get late at the office or late at home, both ways है ना, अलार्म नहीं बजा, गुड। और भी बहुत कुछ हो सकता कि कोई चीज हमारे मन लायक नहीं हुई है, हमारा कोई एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हुआ है, इफ किड इज सिक इन द फैमिली, और यस हो सकता है कि एक बहुत एक एग्जॉस्टिंग डे स्पेंड करने के बाद में you are back home and then there are some guests at your place or something like that kind of situation when you are not in a mood to do anything, but then there are a lot of there is lot of work which is waiting for you। very good Payal, this is a very important fact point you came up with कि अगर हम इतना काम करते हैं अगर उसका रिकॉग्निशन नहीं मिला तो डेफिनेटली that weighs very badly upon our mind। So and such kind of factors which contribute to this, the list is endless। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जीवन में जो चीजें हमारे पास है या जो परिस्थितियां हमारे साथ है या कोई कमी हमारे साथ में है उसके साथ में भी वी आर नॉट वेरी हैप्पी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ ख्वाहिश रहती है, वो अगर पूरी नहीं हुई या वो बात हमारे मन में थी लेकिन हम एंटिसिपेट करते हैं कि उसमें कोई लोग मतलब जो हमारे क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, मे इट बी योर लाइफ पार्टनर और योर इन-लॉज या बच्चे, एंड they should read your mind and they are not able to do that, this also puts you in a very annoying kind of या frustrating kind of situation। और ये सब चीजों में हमको बोलना पड़ता है कि अरे, और जब ये इमोशनल खेल शुरू हो जाता है एंड यू लैंड अप इन अ नेगेटिव काइंड ऑफ सिचुएशन, तो दिल पे मत ले यार should be the reaction that we should all have। now why दिल पे मत ले यार, क्योंकि अगर हमने ऐसा देखना शुरू किया तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो सच्ची में हमारे दिल पे बहुत हावी होती है। और अगर ये स्ट्रेस एक कंटिन्यूड फॉर्म में चलते रहता है एट द कॉन्शियस और द सबकॉन्शियस लेवल, तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन you have to pay it through your health, है ना, it may be physical, mental, emotional, anything। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स। नंबर 1, डू आई रियली नो माई सेल्फ? जब हम माई सेल्फ की बात करते हैं तो यू हैव टू पेंट अ टोटल पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, है ना, नॉट ओनली हाउ यू लुक, हम मोटे हैं, दुबले हैं, काले हैं, गोरे हैं, क्या किया है, अचीव किया नहीं किया, पर उसके साथ में हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है, व्हाट इज द हिडन पोटेंशियल दैट यू हैव, what is the spiritual power that you have, what kind of responses you have when you face any kind of negative or adverse situation in your life, how much, ये दूसरा सवाल है। इसीलिए मैंने आपको पहली स्लाइड बताई थी कि when you look deep into yourself, वहां पर आप खुद को कभी नहीं देखेंगे, you will see everybody else because your focus is मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, और मैं कहाँ, मैं कहीं नहीं, है ना। और तीसरा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, डू अदर्स रियली नो हु एम आई? क्योंकि कई बार यू आर अ सुपर टैलेंटेड पर्सन एज अ किड, और शादी के पहले हम बहुत कुछ, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल्स, यू हैव लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, यू हैव हॉबीज, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट पोस्ट मैरिज एवरीथिंग चेंजेस, और उसके बाद में सडनली आप खुद को कहीं तो भूल जाते, और उसके बाद में कुछ साल के बाद में मतलब हो सकता है कि जब हम किसी और की क्रिएटिविटी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तब हमारी मम्मी या कोई और पर्सन जो हमको जानते हो वो बोलेंगे, अच्छा पर ये मुझे याद है तुम तो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती थी, और
अगर वहां पे पूछा कि पिछले 20 साल में आपने कितनी पेंटिंग बनाई, तो पता चलेगा कि मैंने तो एक भी पेंटिंग नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास तो समय ही नहीं था. आई वाज सो प्री ऑक्यूपाइड विथ माय लाइफ और विथ माय प्रोफेशनल वर्क एंड सो ऑन. अब जब हम बात कर रहे हैं खुद को जानने की, तो यहाँ पर ये बात भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 4 क्वाड्रेंट्स है जो हम हर किसी के ऊपर, ये 4 क्वाड्रेंट्स में हमारी लाइफ रहती है. यहाँ पर मतलब देयर आर 2 कंपोनेंट्स. एक तो कि विच इज नोन बाय सेल्फ, जो मैं खुद के बारे में जानती हूँ. जो मैं खुद के बारे में नहीं जानती हूँ, अननोन. known by others, unknown by others. Now let us have a look at this quadrant. This is arena. That is something which is very public, which is known by everybody. For example, ki you you are a doctor by profession. This is known by you, known by others. Which is the car you have, where is your hospital, and so on, and such kind of things, which is known by everybody. But then, friends, let us have a look at this red area. Red means something which you really need to introspect, and that is known as the blind self. Now, blind spot. Now, what is this blind spot? इसमें मजे की बात यह है कि दूसरे तो आपको जानते हैं, पर आप खुद अपने बारे में नहीं जानती. Can you give me some examples? What could be these things which are not known by you, but they are known by others? Can you share some responses in the chat box, please? Because this is very interesting. I can give you one example. Like for example, your mannerisms, your behavior, or your strengths at time, your weaknesses. हम लोग we take things for granted कि मतलब ये दूसरे, मतलब मैं अपने बारे में कुछ एक अलग perception carry करती हूँ, पर the way I am behaving, the way I am dealing with things, the way I am coping up with the situations in life, कभी कभी हो सकता है कि मुझे खुद को अपनी खूबियां या कमियां ये हमको पता नहीं है, पर दूसरे लोग हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं. आई मे बी अ वेरी रूड पर्सन, बट आई डोंट कंसिडर कि आई एम अ रूड पर्सन, बट देन देयर आर अदर्स हु आर ऑब्जर्विंग योर रूडनेस, राइट, एंड सो ऑन. Now, let us move to the third, that is the facade. Facade is something which is hidden. ये भी एक बहुत interesting box है. Something which is known by you, but it is known by others. What could be such kind of things? कभी कभी हमारी जो hidden desires है, हमारे कुछ secrets हो सकते हैं, हमारी कुछ महत्वाकांक्षा हो सकती है, और वो सब कुछ हम लोग कभी किसी से शेयर नहीं करते हैं. हमने वो कभी किसी को बताया नहीं, कभी खुलकर हमने वो बात सामने रखी नहीं कि yes, I want to do it, yeah, I have the desire of achieving this or becoming this. And then what happens? You land up in a stage of darkness. क्योंकि भगवान भी या दूसरे भी हमारे जो फ्रेंड्स है, वो तभी हमको हेल्प कर सकते हैं when you are ready to help yourself. और अगर हेल्प करना है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि you need to come out clearly. You need to talk it out to your close persons, to your close friends, कि what is going on in your mind, और वो कौन सी चीज है जो आप सच्ची में हासिल करना चाहते हैं. कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि they could come out openly supporting you in achieving that. और जो fourth quadrant है, ये this is something which is not known by you also and not known by others. Now, how does it imply in your mind? अब यहाँ पर हमको करना क्या है? ओपन एरिया का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो ब्लाइंड एरिया है, हाउ विल यू कम टू नो कि दूसरे लोग किस तरीके से आपको देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हम लोग कर सकते हैं कि यू शुड हैव फीडबैक पार्टनर्स इन योर लाइफ. हमारे पास बहुत अच्छे दोस्त रहना चाहिए, और वो दोस्त इतने प्यारे होना चाहिए कि अगर कोई एक नेगेटिव बात भी अगर उनको हमारे मुंह पर बोलना है तो दे शुड हैव दैट फ्रीडम. अरे क्या मीना, तो क्या इस तरीके से ऐसे रिएक्ट कर रही है, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. सो such kind of feedback mechanism which is very open, at times it could be very blunt, at times it could be like matlab shaking you from the core, but such kind of feedback partners
in the form of friends, in the part, then we could have in the form of parents, our family members, our life partner, our the people whom with we are associated in our professional life, और या हमारे टीचर्स हमारे लाइफ में, तो दे कुड हेल्प यू इन कमिंग आउट ऑफ दिस ब्लाइंड एरिया एंड इम्प्रूविंग यू एज अ पर्सन एज अ होल. और उसके बाद में जो तीसरा था हिडन एरिया, की जो बात मैंने अपने मन में रखी है. अब क्या होता है कि हम कुछ चीजें ऐसे रखती है और उसके बाद में हम लोग ये एंटिसिपेट करते हैं कि हमारे क्लोज फ्रेंड्स या क्लोज फैमिली मेंबर्स थे, वो हमारी मन की बात जानना चाहिए और उन्होंने सामने से आके हमको सपोर्ट करना चाहिए. पर एट टाइम्स दे फेल टू डू दिस, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि वी मे लैंड अप इन एंगर, वी मे लैंड अप इन फ्रस्ट्रेशन, और वी मे लैंड अप इन लॉट ऑफ मेंटल एगनी कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, या मुझे तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता है. बट हेलो, you need to answer that question to yourself. You need to go into the disclosure mode. You need to share out with people. जो भी हमारे मन में कोई भी बात हमको अचीव करना चाहते हैं या कोई डिजायर है, yes, you need to share with you. और ये जो अननोन एरिया है, ये तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा थ्रू शेयर डिस्कवरी एंड थ्रू शेयर सेल्फ डिस्क्लोजर. तो ये क्वाड्रेंट हमारा लाइफ का जितना कम होगा, दैट विल हेल्प यू इन इवेल्युएटिंग एज अ पर्सन. अब हम बात करेंगे इमोशंस की. अगर हम वो वर्ड की तरफ देखेंगे, ई एंड मोशन मींस इट इज अ व्हीकल जिससे हमारा बॉडी और माइंड कंट्रोल करता है. अब अगर इमोशंस की बात करें, इमोशंस डोंट रिमेन द सेम. हो सकता है कि सवेरे आप उठे, आप बहुत अच्छे मूड में थे, आप हंस रहे थे, बोल रहे थे, गाना गा रहे थे, एंड यू आर एंजॉयिंग. सडनली आपको पता चलता है कि अचानक से कि द मेड का फोन आता है कि आज वो नहीं आ रही है, या आपको हॉस्पिटल से फोन आता है कि आपकी जो नर्स है या कोई स्टाफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कोई बड़ी सर्जरी है, और वो फोन करके बोलती है कि आई एम नॉट एबल टू कम. तो इस टाइप की कोई ऐसे अनफोर्सिन सिचुएशंस आ जाती है, तो व्हाट विल हैपन टू योर इमोशंस? दीज इमोशंस दे विल चेंज एंड therefore they are constantly changing and they are moving. तो emotion, और ये एक प्राइमरी मोटिवेटिंग फोर्सेस रहेंगे कि जो मतलब उसमें यहाँ पर कैसे रहेगा, हमारे माइंड और हमारे हार्ट का कोऑर्डिनेशन रहेगा कि आर ब्रेन जैसे ही वो कोई भी निगेटिव बात सेंस करेगा या उसको कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, वो तुरंत इट विल गिव इमीडिएट ऐसे ब्रेन को एक सिग्नल देगा. एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आइदर हम लोग हमारे चेहरे पे बहुत गुस्सा दिखेगा या हम बहुत खुश होंगे, तो हम मतलब खुशी की बात है तो वी हैव अ बिग स्माइल, या बहुत ही खुशी की बात है वी मे लाफ ऑल्सो, और बहुत दुख की बात है तो देयर माइट बी टीयर्स इन आवर आईज ऑल्सो. So let us move on to a very important aspect, that is emotional intelligence. पहले एक समय था कि जब एक हमारा जो IQ है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था. और उस समय पर कि अगर कोई पर्सन गोल्ड मेडलिस्ट है या किसी ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है, उसी को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए हायर किया जाता था. पर बाद में धीरे से लेट 50s में द कंसेप्ट स्टार्टेड पोरिंग इट कि फाइनली IQ से ही सब कुछ नहीं होता, you should have a good EQ also. What is good EQ? It is a very important component which measures the level of your emotional intelligence. अब बात है इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पर इसके कुछ कंपोनेंट्स है. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि you should be able to perceive the emotions. अब कैसे रहता है कि the way we react, जरूरी नहीं है कि उस समय पर एक जो ट्रिगरिंग फैक्टर था वो ही उसका सही कारण है. कई बार ऐसे हो सकता है कि हम कोई बात बहुत सहन करते जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम वी हैव नॉट रिएक्टेड, हम लोग उसको सहन कर रहे थे. पर देन फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि देयर कुड बी अ ट्रिगर, और वो ट्रिगरिंग फैक्टर इट कुड रिजल्ट इनटू अ बिग ब्लास्ट. सो we need to perceive कि क्या रहा है वहां पे इमोशंस के साथ,
उसके बाद वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां पर जो बाहर हमको एक किसी का भी आउटबर्स्ट दिखता है, चाहे हमारा खुद का या और किसी का, तो दैट इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। उसके नीचे एक बहुत बड़ा एरिया रहता है which is hidden, which you need to explore. And then if you start understanding your emotions, then definitely you'll be able to manage your emotions. और उसके बाद में सबसे important बात, you will be in a position to use your emotion. May it be positive emotion or may it be negative emotion, but then both the emotions, they need to be used constructively. That is the bottom line, what we need to understand. और अभी subsequent slide में we'll be going through some examples also. Emotional intelligence. So number one point is you need to tune in into your emotions. यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी, it was in 2011 that I was मतलब accidentally I detected a lymph in my axilla. तो एक्सिला में lymph node, I missed my heartbeat और it raised an alarm. ब्रेस्ट में कोई लंप नहीं था, कुछ नहीं था, उसके इन्वेस्टिगेशंस हुए और I was waiting for the report from the breast and from the lymph node. अब ऐसे हुआ कि उसके लिए मुझे 24 घंटे का समय लग गया. What happened to my emotions? वो lymph node मिलने के पहले I was supposed to conduct a program और I was in a very happy और एकदम बहुत totally engrossed in my work और ऐसा मेरा मतलब एक emotional setup उस समय पर ऐसा था. जैसे lymph node आया हाथ में तुरंत I was too stressed out and at the back of my mind I had that pressure. Next day जब मैं गई evaluate किया, lymph node was there, breast में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो बात मुझे बहुत मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस हो गया. और बाद में मुझे एक बात ध्यान में आई कि आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर सम वर्स रिपोर्ट इन माई लाइफ ऑल्सो. मुझे एक अंदाज आ गया था कि प्रोबेबली मैलिग्नेंसी का कुछ इसमें हो सकता है, बट आई वॉज किलिंग टाइम. और नेक्स्ट डे मुझे 11 o'clock रवि सर ने रिपोर्ट लेने बुलाया था एंड आई वेंट टू द जिम क्योंकि मुझे टाइम ये करना था. और वहाँ पर विलास काळे जी, ही इज अ वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज देयर और उन्होंने पूछा कि मीना यू डोंट लुक द सेम मीना whom we see every day, what happened? और आई हैड टीयर्स इन माय आईज और मैंने उनको बोला कि सर आई एम गेटिंग मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सम वर्स रिपोर्ट इन माय लाइफ. उन्होंने मेरी बात में सुनी, पर उसके पहले उन्होंने एक कमेंट किया कि रिमेंबर मीना, whatever the report may be, but please keep in mind that you die only once, you don't die every day. अब उस समय पर वो बात समझने के लिए मुझे 2 से 4 मिनट का समय लग गया क्योंकि I was too tense. और as that thought process sinked in fraction of a second I realized कि कल से आज तक इतने 24 घंटों में शायद मैं लाखों बार तो वैसे ही मर चुकी थी. And that was the moment I decided कि no, I will die only once. I'm not going to मतलब die so many times. और एक डिटरमाइंड एफर्ट के साथ में आई वेंट टू रवि सर और मैंने उनको बोला कि सर जो भी रिपोर्ट है आप बता दीजिए, फिर हम इसका आगे का प्लान करते हैं. और वो एक पर्टिकुलर बात का मेरे ऊपर, मेरे साइक के ऊपर इतना एक जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ कि उसके बाद में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे और बहुत सारे सब फैमिली मेंबर्स थे. आई सॉ टीयर्स इन देयर आईज, पर समहाउ मेरे शायद आंसू वहां पे चले गए थे क्योंकि पता नहीं मैंने एक अंदर से अपने आप को इतना कंपोज कर लिया था कि नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग टू फाइट इट आउट, आई हैव टू कम आउट ऑफ इट. क्योंकि मेरे सामने ऋषिका थी और उसके लिए बीइंग अ सिंगल पेरेंट द होल वर्ल्ड मेंट, मतलब उसके लिए पूरा होल वर्ल्ड यानी उसकी मम्मी थी. तो मैंने वहां पे कभी दिमाग में वो बात आने भी नहीं दी कि सर्जरी में क्या होगा, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, या कीमो होगा उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है. मैंने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं. मैंने सिर्फ ये था कि दिस इज मेंट फॉर माय दिस थिंग डिजीज क्योर एंड आई एम गोइंग टू कम आउट ऑफ इट. और शायद वो एटीट्यूड ने ही, मतलब एक जो डिफिकल्ट फेज था, इट हेल्प मी आउट इन कमिंग आउट ऑफ दैट. So tuning into emotions, understanding them and taking appropriate action is very important. तो ये appropriate action के लिए, इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है कि हमारे लाइफ में ऐसे लोग होना चाहिए कि जो हमको सही समय पर
सही बात आकर बोल सके और उसका एक बहुत पॉजिटिव वे में हम लोगों के लाइफ पे उसका इम्पैक्ट हो सके. सो द सिचुएशन क्या होना चाहिए? इट शुड बी हेड वर्किंग विद द हार्ट. ये दोनों का एक कोऑर्डिनेशन में जब एक पिक्चर बनता है तो दैट बिकम्स अ कंप्लीट पिक्चर. सो I am very sure all of you will agree with me कि our mindset is responsible for many outcomes. अगर आप बोलते हैं कि ये मेरे से हो सकता है तो you are 100% right, क्योंकि आपसे वो हो ही जाएगा. अगर आप बोलते हैं कि ये मेरे से नहीं हो सकता है then also you will be 100% right, क्योंकि वो बात आपने ही अपने आप को कमिटमेंट दे दिया है कि नहीं हो सकता तो वो नहीं ही होगा. So friends, always accept any challenge or any situation in your life with the mindset ki yes, it is possible, I can do it, I will do it no matter what, and definitely the results will definitely be positive. क्योंकि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इमोशंस का खेल है जो हमको इसके बहुत पॉजिटिव नेगेटिव या वॉट एवर आउटकम हमने अपने लिए डिसाइड करके रखा है वो ही आउटकम हमको मिलेगा. हम प्यार करेंगे, लोग हमको प्यार देंगे. हम लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, वो हमको रिस्पेक्ट देंगे. हम लोगों के लिए उठ के खड़े होंगे, लोग हमारे लिए उठ के खड़े रहेंगे, एंड सो ऑन. अब इमोशनल इंटेलिजेंस पे EQ टेस्ट करने के पहले हम लोग एक बहुत फटाफट देख लेंगे कि व्हाट इज दिस इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल अबाउट. क्या हम इसको सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं? द आंसर इज वेरी बिग यस. और इमोशनल इंटेलिजेंस इट कैन बी लर्न्ड, इट कैन बी डेवलप्ड फर्दर एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबकी जो नीड्स है वो डिफरेंट है. एक अगर हम बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस और उसकी नीड्स के बारे में बात करेंगे वो अलग होगा. एक एल्डरली ग्रोन अप पर्सन की नीड के बारे में बात करेंगे वो अलग होगा. मेल्स और फीमेल्स के इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे वो भी अलग होगा. बचपन से लड़कियों का अपब्रिंगिंग ऐसा होता है कि दे आर वेरी गुड इन इंटरपर्सनल स्किल्स, पर जो लड़के होते हैं दे आर आउटगोइंग एंड दे आर वेरी गुड इन इंट्रापर्सनल स्किल्स. दे आर मोर good in handling the stress of the outside world because they are more exposed to that. अभी तो वो बात नहीं रही है. Both girls and boys they are treated the same, but still the difference is there. फिर अगर हमारा जनरल इंटेलिजेंस अच्छा रहा तो उससे डेफिनेटली हमारा EQ अभी जितना भी अच्छा है उसको हम और भी ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. Why? Because if you have a good IQ, that will definitely make you a good learner and you'll grasp the things much faster than others. And definitely अगर हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा स्पेशली इन क्रिटिकल सिचुएशंस डेफिनेटली that will add to the positive outcomes. और सबसे important बात कि it is reflected in relationships. You must be seeing in your families, in at office space also, कि कुछ लोग रहते हैं जैसे अगर घर में एक मैरिज का भी फंक्शन है तो कोई ना कोई चाचा मामा कोई ना कोई ऐसे रहते हैं कि जिनके लिए सब लोग रुके रहते हैं. एंड द मोमेंट दैट पर्सन कम्स इन सब लोग बोलते हैं अरे आपकी कमी थी, बस अभी तो माहौल बन गया. ऐसा हम क्यों बोलते हैं? व्हाट इज सो कैरेक्टरिस्टिक अबाउट दैट पर्सन? दैट पर्सन इज फुल ऑफ पॉजिटिव इमोशंस. वो आते से पूरा माहौल इसीलिए अच्छा हो जाता है. ऐसा नहीं है कि वो अपने साथ कुछ लेकर आ रहे हैं, वो अपने साथ बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं और वो इमोशंस एक पॉजिटिव इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं. स्पेशली बिटवीन द कपल्स ऑल्सो. कुछ कुछ कपल्स हम देखते हैं कि वो बहुत खुशी खुशी एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से एडजस्ट करके प्यार से रहते हैं. कुछ कुछ कपल्स में बस उनको हर एक चीज इट एक्ट्स एज अ स्पार्क इन अ नेगेटिव वे और हर चीज पे उनकी बहुत तुरंत या तो लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा या तो मतलब कुछ ना कुछ ईगो उनका क्लैश होगा एंड सो ऑन. सो अगर इवन हम लोग सिबलिंग्स में भी देखेंगे तो हमको कभी कभी ऐसे ध्यान में आता है कि एक बच्चा है उसको अगर इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो सबको साथ में लेके चलेगा, सबके साथ में वो बहुत अच्छे से जेल होगा. लेकिन अगर दूसरे बच्चे का अगर EQ बहुत अच्छा नहीं है तो वो उसका वो रिलेशनशिप में भी एक उसका रिफ्लेक्शन वहां पर पक्का दिखेगा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम EQ के ऐसे कुछ ये रहते हैं, कुछ स्केल्स रहते हैं जिससे हम अपना EQ भी मेजर कर सकते हैं. सो द
important thing is you should rule your feelings and lest your feelings rule you. मतलब हमको अपने feelings को के ऊपर अपना कंट्रोल, अपना पावर ये पक्का रहना चाहिए. So emotions, all of you again ये बात से सहमत होंगे कि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारे खुद के लिए है, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर एंड द वर्क प्लेस. और ये सब पॉजिटिव इमोशंस रहे तो दे आर रिफ्लेक्टेड इन अ डीप बॉन्डिंग everywhere in your life, because then finally that becomes your attitude which you carry with you everywhere you go. अब मैंने आप सबको बोला था कि आपको एक पीस ऑफ पेपर और पेन रखना है और यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे जिससे हम लोग अपना अपना EQ देख सकते हैं. एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद दैट. और ये जो EQ की टेस्ट है ये एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है डैनियल गोलमैन, जिन्होंने एक ये दिया है. एक्चुअली EQ कैलकुलेट करने के जो दूसरी जो टेस्ट होती है तो बहुत बड़े, देर आर मोर देन 250 क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी आंसर्ड. उसमें बहुत माइन्यूट पैरामीटर्स और वो सब देखकर एक EQ होता है. पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चंस ये करेंगे और दैट कुड आल्सो गिव यू अ रफ सेंस ऑफ योर EQ. नाउ वी गो अहेड विद क्वेश्चन नंबर 1. आपको आपके पेपर पे करना क्या है, यू राइट डाउन 1 और उसके आगे आपका जो भी ऑप्शन होगा तो A, B, C या D, तो 1A, 1B, whatever it is आपको वहां पर लिखना है. Now the number 1 situation is you are on an aeroplane that suddenly hits extremely bad turbulence and begins rocking from side to side. Now what do you do? First response, continue to read your book or magazine or watch the movie, paying little attention to the turbulence. सेकेंड रिस्पॉन्स कुड बी आप एकदम विजिलेंट हो जाएंगे फॉर एन इमरजेंसी और वहां पे जो स्टूवर्डेस है उनकी तरफ ध्यान देंगे कि अरे कुछ इमरजेंसी का कुछ सिग्नल या कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं करने वाले हैं, एंड रीड द इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन कार्ड जो वहां पर प्रोवाइड किया है. अ लिटिल ऑफ A और B और D ऑप्शन कुड बी नॉट श्योर, नेवर नोटिस्ड. Now, we move ahead to question number 2. आपका एक 4 years का बच्चा है, उसको पार्क में लेकर गए. He starts crying because जो दूसरे बच्चे उनके साथ खेल नहीं रहे हैं. What do you do? You stay out of it. कि बच्चों का मामला है, let the kids deal with it on their own. Number 2 response could be you talk to her and help her figure out ways to get the other kids to play with her. Third response could be tell her in a soft voice not to cry. Number 4, try to distract the crying girl by showing her some other things she could play with. So, please mark your response for second question, A, B or C, D, anything. Question number 3. Assume you are a college student who has hoped to get an A in a course, but you have just found out that you got a C on the midterm. What do you do? A. Sketch out a specific plan for ways to improve your grade and resolve to follow through on your plans. B. You resolve to do better in the future. C. You tell yourself it really doesn't matter how much you do in the course and concentrate instead on the other classes where your grades are higher. Go to see the professor and try to talk to her by giving you a better grade. Question number 4. Imagine you are an insurance salesman calling prospective clients. 15 people in a row have hung up on you and you are getting discouraged. What do you do? A. Call it a day and hope you have a better luck tomorrow. Assess qualities in yourself that may be undermining your ability to make the sale. C. Try something new in the next call and keep plugging away. D. Consider another line of work.
Question number 5. You are a manager in an organization that is trying to encourage respect for racial and ethnic diversity. You overhear someone telling a racist joke. What do? A. Ignore it. It's only a joke. B. Call the person in the office for a reprimand. C. Speak up on the spot, saying that such jokes are inappropriate and will not be tolerated in your organization. D. Suggest to the person telling the joke that he should go through a diversity training program. Number 6. You are trying to calm down a friend who has worked up himself into a fury at a driver in another car who has cut dangerously close in front of him. आपको पता है जब कोई ऐसे कट करता है तो आपको सही में बहुत गुस्सा आता है, especially the person who is driving the car. What do? A. Tell him to forget it. He's okay now and it's no big deal. B. Put on one of his favorite tapes and try to distract him. C. Join him in putting down the other driver as a show of rapport. D. Tell him about a time something like this happened to you and how you felt as mad as he does now. But then you saw the other driver was to a hospital emergency room. So please mark your responses. 7. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आई एम 100% श्योर आप सब लोग ये सिचुएशन में से गए होंगे. You and your life partner have gotten into an argument that has escalated into shouting match. You both are upset and in the heat of anger start making personal attacks you don't really mean. What's the best thing to do? Take a 20-minute break and then continue the discussion. Number 2, just stop the argument, go silent, no matter what your partner says. Number C, say you are sorry and ask your partner to apologize too. D, stop for a moment, collect your thoughts, and then state your side of the case as precisely as you can. Question number 8. You have been assigned to head a working team that is trying to come up with a creative solution to a nagging problem at work. What is the first thing you would do? A. Drop an agenda and allot time for discussion of each item so that you make the best use of time together. B. Have people take the time to get to know each other better. C. Begin by asking each person for ideas how to solve the problem while the ideas are fresh. D. Start out with a brainstorming session, encouraging everyone to say whatever comes to mind, no matter how wild. And the last 2 questions. Number 9. Your 3-year-old son is extremely timid, has been hypersensitive about and a bit fearful of new places and people virtually since he was born. What do? Accept that he has a shy temperament and think of the ways to shelter him from situations that could upset him. Take him to a child psychiatrist for help. Purposely expose him to a lot of people and places so that he can get over his fear. Engineer an ongoing series of challenging but manageable experiences that will teach him how to handle new people and new places. And the last question. For years, you have been wanting to get back to learning to play a musical instrument you tried in childhood. And now, just for fun, you have finally gotten around to starting. You want to make the most effective use of time. What do? Hold yourself to a strict practice time each day. Choose pieces that stretch your abilities a bit. Practice only when you are really in the mood. Pick pieces
that are far beyond your ability, but you can master with diligent effort. So now it's time to give yourself the scores for those 10 questions. Now, the first question was about the aeroplane thing. Now, those who have written A, B or C as the option, you will write 20 marks for it. और अगर किसी ने D option दिया है तो they will mark a 0. Why? What is वो एरोप्लेन का टर्बुलेंस क्या है? That is a turbulence मतलब किसी भी form of disturbance. It could be any situation in life which is going to throw your life in haywire situation also. इस समय पे हमारा रिस्पॉन्स कैसे होता है कि आर वी विजिलेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टॉर्म दैट इज गोइंग टू कम इनटू आवर लाइफ. तो इसमें से ए, बी या सी, इसमें से कोई भी ऑप्शन दैट इंडिकेट्स कि यू आर विजिलेंट अबाउट दोज थिंग्स, इसीलिए उसमें से आपको 20 मिलेंगे. पर डी नॉट श्योर, इसका मतलब कि यू आर नॉट विजिलेंट अबाउट योर सर्कमस्टांसेस, अबाउट द थिंग्स यू आर दैट आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ, तो दैट गिव्स यू अ 0. अब जो बी वाला क्वेश्चन था कि एक 4 year old को पार्क में लेके जाना था और वहां पर वो बच्चा रो रहा क्योंकि दूसरे बच्चे उसको खेलने नहीं दे रहे हैं. नाउ इफ यू हैव गिवन ए मतलब कि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दो तो 0. अगर सी दिया होगा कि टेलर इन अ काइंड वॉइस कि अरे कुछ नहीं होता मत रो करके, या तो उसको कुछ और खेलने के लिए दे दिया, ये कुछ भी ऑप्शन अगर आपने दिया होगा तो यू विल गेट अ 0 फॉर दैट. ए इज द बी इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि जो इमोशनली इंटेलिजेंट पेरेंट्स रहते हैं व्हाट डू दे डू कि वो बच्चों को वहां पर जो भी ऐसे मोमेंट्स ऑफ अपसेट रहते हैं वहां पर दे ट्रीट देम एज अपॉर्चुनिटीज, एज टू बी एज अ पार्ट ऑफ इमोशनल कोचिंग फॉर देयर चिल्ड्रन. और वहां पर अगर वो बच्चे को दूसरे बच्चे खेलने नहीं दे रहे हैं तो वहां पर हमको बच्चे को वो गाइड करना बहुत जरूरी है कि जरूर तुमने कुछ तो बच्चों के साथ किया होगा इसीलिए उन्होंने आपको वो ग्रुप से बाहर रख दिया. तो वहां पर उसी को जाके वापस मिंगल होना पड़ेगा, उसने कुछ गड़बड़ की होगी उसके लिए उसे सॉरी बोलना चाहिए और वापस से वो ग्रुप में उसने जाना चाहिए. तो दिस इज द रोल ऑफ एन इमोशनल इंटेलिजेंट पेरेंट. अब यहाँ पर एक कुछ छोटी सी एक बच्ची की सिचुएशन दी थी, पर हमारे बच्चे चाहे छोटे हो बड़े हो कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, पर इस टाइप की चैलेंजिंग सिचुएशंस की जब लोग उनको सबके साथ में नहीं अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो देन दैट इज अ बिग क्वेश्चन कि वहां पर पेरेंट्स नीड टू गाइड देम कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर, इसीलिए यू आर नॉट बीइंग इन्वॉल्व देयर इन दैट ग्रुप. अब जो नंबर 3 था वो ये था कि एक कॉलेज स्टूडेंट जिसको ए ग्रेड का वो बहुत होप कर रहा था पर मिल गया सी ग्रेड, अब वो क्या करेगा? अब यहाँ पर सी ग्रेड अगर उसको वहां पर मिल गया तो उसमें सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? दैट विल बी ए, कि उसने एक स्पेसिफिक प्लान ड्रॉ करना चाहिए कि अगले बार वो इम्प्रूव कैसे कर सकता है. अब ये तो एक थी स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे की बात, पर aren't we students still now also? बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है ना कि हम कोई नई टेक्निक सीख रहे हैं, कोई नई चीज सीख रहे हैं, हो सकता कि उसका आउटकम हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर न्यू टेक्निक ऑफ सर्जरी आई एम गोइंग टू ट्राई, पर हो सकता कि वो उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे. तो उसमें हमने करना क्या चाहिए कि सिर्फ रिजॉल्व करके कि आई रिजॉल्व टू डू बेटर इन फ्यूचर ऐसा बोल के तो नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत वेग स्टेटमेंट हो गया. You need to definitely carry out a specific plan कि how you are going to improvise upon it. और फिर एक रिस्पॉन्स ये भी हो सकता है कि अरे छोड़ दो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, है ना, और मैं दूसरी जो चीज मुझे पहले से अच्छे से आती है ना मैं उसी के ऊपर फोकस करूंगी. अगर ऐसा किया तो यू विल नेवर लर्न एनीथिंग न्यू इन योर लाइफ. और ये चीजें तो बहुत लॉन्ग रन में जो प्रोफेसर वाली बात थी कि यू गो टू द टीचर और उनको कुछ गिफ्ट दो, मिठाई का डब्बा दो एंड ट्राई टू इम्प्रूव द ग्रेड, सो दिस डोंट हेल्प यू इन द लॉन्गर रन. तो यहाँ पर जो ये था क्वेश्चन नंबर 3 था, तो उसमें A gets 20, B, C, D they get 0.
नाउ नंबर 4 कि जो इंश्योरेंस पर्सन था जिसने बहुत सारे कॉल्स किए और बाद में वो इतना डिस्करेज हो गया कि ही वाज नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन हमारे मेडिकल फील्ड में भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे इसमें फेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर व्हाट इज द की वर्ड फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट यू शुड ऑलवेज हैव दैट ऑप्टिमिज्म इन माय लाइफ कि मैं 15 बार फेल हो गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, देयर इज ऑलवेज द 16th एंड द 17th एंड द n number of efforts which are available for me। तो यहाँ पर कि I'll take that as challenge, मैं और कोई नया अप्रोच उसमें ढूंढने की कोशिश करूंगी एंड आई विल ट्राई टू ओवरकम दैट। तो वो ऑप्टिमिज्म के लिए जो ऑप्शन कौन सा था, सी, कि ट्राई समथिंग न्यू इन द नेक्स्ट कॉल एंड कीप प्लगिंग अवे, कि आई एम नॉट गोइंग टू क्विट, दैट इज द रिस्पॉन्स सी। तो सी को 20 मिलेंगे, बाकी सबको यू विल गिव अ 0। क्वेश्चन नंबर 5 था। अब ये एक टाइप की, जैसे अभी लक्ष्मी मैडम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, राइट, देयर आर सम स्ट्रिक्ट डूज एंड डोंट्स, और कुछ कुछ चीजों के बारे में कि अगर किसी ने ऐसा कमेंट कर दिया विच इज अगेंस्ट द फिलोसॉफी, विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जब हम किसी को इस तरीके से मतलब अगेंस्ट द फिलोसॉफी कोई अगर जोक पास कर रहा है तो व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स। यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव वे इज कि वहां पर आपने तुरंत जाकर बोलना चाहिए कि such kind of jokes are inappropriate and at no cost they will be accepted in the organization, you should be very firm and clear about it। तो जिन्होंने भी इसका सी आंसर लिखा होगा they will get 20, और बाकी का कि एक हम लोग लोगों के प्रेजुडाइसेस चेंज नहीं कर सकते कि जाओ जाके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आओ कि हाउ टू बिहेव और ये सब चीजें, वो सब पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बाकी सब ऑप्शंस को ए, बी एंड डी को आप 0 देंगे और सी को 20 देंगे। नंबर 6 जो सिचुएशन थी वो ये था कि किसी ने कार को, वहां पर आपका कोई फ्रेंड ड्राइव कर रहा है और उसको किसी ने कट किया, ओवरटेक किया। नाउ उसमें अगर ए लिखा है ऑप्शन तो दैट इज 0, बी और सी लिखा है तो दैट इज 5, पर अगर ऑप्शन डी लिखा है तो दैट इज 20। नाउ व्हाट डज दैट मीन कि बी और सी था कि आपने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, एक कुछ म्यूजिक लगा दिया है ना, या मतलब एक थोड़ा एम्पथाइज करने की कोशिश की तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। पर वहां पर अगर आपने एक लेस एंगर प्रोवोकिंग अगर थॉट उसको दे दिया कि अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मैं भी ऐसा सोचा था कि मैं अब इसको कट मारता हूँ और मुझे पता चला कि ही वाज कैरिंग अ पेशेंट टू द हॉस्पिटल, तो तब मुझे बहुत बुरा लगा कि अरे मैं ये क्या सोच रहा था। तो अगर इस तरीके से हमने वो बात को वहां पर रखी तो व्हाट विल दैट हैपन, दैट विल लीड इनटू एन इमोशनली इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स। इसीलिए डी गेट्स 20 फॉर दिस। सो ए 0, बी सी 5 और डी लिखा है तो 20 मार्क्स। 7 नंबर, ये 7 नंबर मैं जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्वेश्चन डालती हूँ, इट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग। और इसमें जब मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी, कितने लोगों ने बी लिखा है, कैन यू रेज योर हैंड, बी, सी या डी लिखा है। लक्ष्मी मैडम ने कौन सा ऑप्शन लिखा था एबीसीडी में से? बी। मैम मैंने भी बी लिखा है, जस्ट बी साइलेंट, डोंट टॉक। मेंटल पीस, बी साइलेंट। बी साइलेंट, यस। तो अभी इसमें जिन्होंने भी बी, सी या डी लिखा है दे गेट 0, और जिन्होंने ए लिखा है दे गेट 20 मार्क्स। अब ये मुझे पता था ये मीना ऐसा ही करेगी। अब ये 20 इसमें कहाँ से आ गए, इसकी एक बहुत मजेदार बात है कि जब भी इस तरीके की ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पर यू शुड टेक अ ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स। व्हाई 20 मिनट्स? क्योंकि वो 20 मिनट्स में देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन कि हम लोग बहुत लड़ाई के मूड में हैं, हम लोग बहुत गुस्से में हैं, लेकिन वो 20 मिनट्स में हो सकता कि कोई एक अच्छी फ्रेंड का फोन आ जाए, हो सकता कि कोई एक अच्छी बात सुनने मिले, हो सकता कि हमको एक अच्छा म्यूजिक ही सुन ले, हो सकता कि 2 मिनट के लिए हम लोग कोई एक कॉमेडी शो ऐसे देख ले, एंड सो ऑन। सो एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि झगड़ा खत्म होगा, लेकिन वो 20 मिनट के बाद अपन झगड़ा करेंगे ना तो उसका जो एक बहुत मतलब खतरनाक उसका वो एक रिजल्ट हो सकता था कि हम कुछ बहुत प्यारी प्यारी बातें कर सकते थे जो बोलने वाले थे, जो वी विच वी रियली डिडंट वांट टू से, पर हम बोल देते थे। तो इसका जो एक मैटर है वो पक्का डाइल्यूट हो जाता है। इसीलिए अगर ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स जो है तो दे विल गेट द 20 मार्क्स फॉर दैट।
अब इसके बाद में था 8 नंबर का, कि अगर 8 नंबर का ये था कि आपको एक वर्किंग टीम का हेड असाइन किया है। अब इसमें जिन्होंने A, C या D लिखा है दे विल गेट a 0, पर जिन्होंने B लिखा है दे विल गेट 20। नाउ व्हाई 20? क्योंकि इट वाज द क्रिएटिव ग्रुप अगर जब फॉर्म किया है और आप उसके हेड बने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप कितना भी एजेंडा बना लो, आप कितना भी ये करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वहां पर फर्स्ट द ग्रुप नीड्स टू नो ईच अदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ये रहेगी कि वी शुड हेल्प पीपल टू टेक टाइम टू नो ईच अदर। तो जब वो एक दूसरे को पहचानेंगे तो उनका कंफर्ट लेवल अच्छे से रहेगा, और वहां पर जब वो एक दूसरे के साथ जब रिस्पॉन्ड करेंगे या दे विल गिव देयर क्रिएटिव सॉल्यूशंस, तो वहां पर उनका आइस ब्रेकिंग भी हो जाएगा एंड दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन अ मोर कंस्ट्रक्टिव वे। 9th वाली सिचुएशन थी अ टिमिड चाइल्ड, है ना। अब ऐसे बच्चे हमने हो सकता अपने फैमिली में भी देखे होंगे या कहीं ना कहीं देखे होंगे, क्योंकि ऐसे टाइप की पर्सनालिटीज दे आर वेरी कॉमन, और वो नई जगह से, बच्चों की तो बात जाने दो, ऐसे कई बड़े लोग भी होते हैं कि जिनको बहुत फोबिया होता है कि दे आर नॉट मतलब वेरी कंफर्टेबल मीटिंग न्यू पीपल या गोइंग टू न्यू प्लेसेस, वो अपने अपने क्लोज में दे आर कंफर्टेबल। Now, how to manage such kind of situations? अब 9 में जिन्होंने A लिखा है, A was कि हमने वो टेम्परामेंट को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना और वो पर्सन को हमने शेल्टर करने की कोशिश करना। सी दैट कैन नॉट बी एन इमोशनली इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स, है ना, क्योंकि ऐसा करके तो वो कभी भी प्रॉब्लम ओवरकम ही नहीं कर पाएगा। तो A गेट 0। फिर अगर B था कि टेक द चाइल्ड टू चाइल्ड साइकेट्रिस्ट। अब साइकेट्रिस्ट मतलब कि इट कुड बी एनी पर्सन कि जो आपको वो प्रॉब्लम ओवरकम करने में हेल्प करे, तो वो एक रिस्पॉन्स दैट गेट्स बी। पर अगर सी था कि बहुत सारे लोगों को एक्सपोज कर दो लेगा, तो दैट अगेन गेट्स 0। पर अगर हमने ऑनगोइंग सीरीज में किया कि छोटे छोटे चैलेंजेस हम उसको देते रहे, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प दैट पर्सन टू ओवरकम द टिमिडनेस। तो D गेट्स 20, तो B गेट्स 5, D gets 20, A and C they get 0। और था लास्ट क्वेश्चन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अभी बहुत सारे यहाँ पे सीनियर्स होंगे एंड दे विल अग्री विथ मी कि अभी एक 50 क्रॉस करने के बाद में सब लोगों को धीरे से अपना मूड बनने लेता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो, कुछ हॉबी में वापस जाओ करे, है ना। तो अब यहाँ पर ये हमारे लिए एक तरीके का फिर से चैलेंज इट बिकम्स, है ना। अब पर जब हम ये चैलेंज करते हैं तो इट शुड नॉट बी टू सीरियस अ बिजनेस, है ना। इट शुड गिव यू हैप्पीनेस, इट शुड गिव यू अ प्लेजर। तो जिन्होंने भी इसमें A, C या D लिखा था, they will give 0 and B will give 20। क्यों? क्योंकि B ऑप्शन था चूज पीसेस दैट स्ट्रेच योर एबिलिटीज अ बिट। तो हमको वो एबिलिटीज को धीरे धीरे ये करना है ना। तो नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट डू द टोटल, और आपकी जो भी टोटल आई होगी, है ना, तो जिनका स्कोर इज बिटवीन 0 to 100, उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर इमोशनल रिस्पॉन्सेस। जिनका 100 से 150 के बीच में आया है, दैट इज नॉट बैड, बट देन देयर आर सर्टेन ब्लाइंड स्पॉट्स इन योर इमोशंस। तो ब्लाइंड स्पॉट्स अगर रिमूव करना है तो इसमें फिर से फैमिली, फ्रेंड्स और जो मैंने फीडबैक पार्टनर्स की बात की थी उनकी हेल्प पक्का लगेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वी ऑल हैव अ गुड IQ, तो IQ का हेल्प लेके हमको अपना EQ और अच्छी तरीके से डेवलप करना चाहिए। अब अगर 150 to 200 है तो इसका मतलब योर EQ इज गुड, बट दिस डजंट मीन दैट यू कैन नॉट डू better. There is always a chance of improvement, and as we face the situations in our life, as we gather experiences, वो सब चीजों से definitely you become a better evolved person in your life. अब यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है, let me invite Dr. Smita and she'll perform an activity। आप सिर्फ स्मिता को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए what is going on. Over to you, Smita. स्मिता मैम मुझे स्पॉटलाइट, ये लक्ष्मी मैम मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिए ना। मैं होस्ट हूँ। वेट लेट मी चेक वेट आई कैन। स्मिता तुम ही तो होस्ट हो।
हाँ ma'am. Okay. So I'm seeing. Yes, we can see you. Like I'll use this bottle. Yeah. स्मिता ने शैंपेन की बोतल खोली, ऐसा हम बोल सकते हैं लक्ष्मी मैडम। हाँ, वही मैं देख रही हूँ, मीना आकर शैंपेन की बोतल खुलवा रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे। अभी जीरा हो रहा सोडा है ma'am. रिलीज जीरा ऑफ न्यूज सोडा. बुलेटिन एंड वेलनेस व्हील। क्या बात है मीना। आहा, I hope दिख रहा है मैम पर सबको. वो सबको दिख रहा है। सबको दिख रहा है। ओके, तुम क्या कर रही हो, समझ क्या रहा है पता नहीं, पर दिख हाँ। सब रहा है। अभी सी you should always have a bottle opener in your life. What did Smita do? जब वो बॉटल शेक कर रही थी, मतलब those are the problems of your life, है ना, कि जब हम बहुत सारा टर्बुलेंस होता है तो उसमें बहुत सारे इमोशंस की उथल पुथल होती है ना, और जब अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है तो यू रियली नीड somebody to give you a moral support, a emotional support. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब स्मिता ने पहले जब बॉटल ओपनर लेकर बॉटल ओपन, तो व्हाट हैपेंड, वो पूरा एक एफर्वेसेंस था जो बाहर निकला। तो इसी तरीके से जब हम बहुत परेशान या बहुत दुखी और ऐसे होते हैं, उस समय पर कोई पर्सन ने बॉटल ओपन कर दी तो व्हाट हैपेंस कि हमारे इमोशंस बाहर आ जाते। पर उसके बाद में क्या हुआ, वो बॉटल में आपने देखा होगा कि देन द थिंग्स दे गॉट सेटल डाउन। तो एक बार हमारा भी अगर हम बहुत रो लिए, आउटबर्स्ट हो गया, हमने किसी के पास अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी है, तो उसके बाद में हम शांत हो जाते। बट देन व्हाट नेक्स्ट, कि जब मीता ने उसमें उठाकर सॉल्ट डाला, व्हाट हैपेंड आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्ट, फिर से वो इफर्वेंसेस हुआ, और वो जितने बार सॉल्ट डालेगी उतने बार वो होते रहेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट थिंग, यू शुड हैव अ बॉटल ओपनर इन योर लाइफ। The second important thing कि you should be very wise in choosing कि who will be the bottle opener in your life, क्योंकि अगर वो बॉटल ओपनर सही पर्सन नहीं है तो क्या होगा, हम लोगों ने अपने अंदर जो टर्मोइल था, अपना इमोशंस थे या जो भी मतलब हमारे वीकनेसेस थे, हमने वो पर्सन के सामने खोल के रख, और बाद में ऐसे हो सकता कि वो पर्सन अगर उसका अंड्यू तो क्या करेगा, व्हाट वाज नमक, इट वाज कि एक प्रोवोकेशन वो आपको हमेशा देगा, एंड ही विल स्टार्ट टेकिंग जॉय इन दैट कि देखो अभी वो देखो वहां पे हंसते दिख रही है ना, अभी मैं आपको ना आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि अभी इसका मूड कैसे खराब करना है, क्योंकि ही नोज दैट ट्रिगर, ही नोज कि वहां पर कहाँ पे जाके इसको टच कर देना है, और वहां पे वो इमोशंस फिर से उसका एक ये होगा, मतलब इमोशंस विल बॉइल ओवर अगेन। सो इमोशन बॉटल ओपनर रहना चाहिए, लेकिन कौन बॉटल ओपनर रहेगा, you should be very very critical in choosing the bottle opener of your life. So the last part of the sessions ki emotional intelligence is all about managing your emotions. अब जब मैनेज करने की बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा कि what things they are coming from me. सबसे इम्पोर्टेंट बात और ये सबसे डिफिकल्ट बात है, दैट इज लर्निंग टू से नो। कई बार हम लोग बहुत बार पछताते क्योंकि हम ना नहीं कर पाए, और उसके बाद में दैट थिंग बिकम्स टू ओवरवेलमिंग फॉर मी, दैट बिकम्स टू डिफिकल्ट अ चैलेंज फॉर मी टू मैनेज, और फिर उसमें बहुत सारा वी सफर अ लॉट। व्हाई? बिकॉज हम वो समय पर हमारे पास नहीं बोलने की अपॉर्चुनिटी थी, और नहीं बोलने की भी देयर आर प्लेजेंट वेज ऑफ सेइंग नो, पर हम कभी ना बोल नहीं पाते, और वो चक्कर में हम बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल को फेस करते हैं। फिर उसके बाद में सेल्फ कंट्रोल किस चीज का करना है, स्ट्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात की स्ट्रेस अपना मैनेज करके रखना है। जब हम होम लाइफ प्रोफेशनल लाइफ ये दोनों में एक क्लियर कट डिमार्केशन होना चाहिए। जब आप बिजनेस मतलब योर वर्क, तो वर्क शुड बी वर्क, और अगर कभी भी ऐसे इम्पल्सेस आ रहे हैं, इम्पल्सेस आते हैं, हम लोग उसमें रिएक्ट भी करेंगे, पर वी शुड बी एबल टू कंट्रोल आवर इम्पल्सेस। कभी कभी
क्वाइट नेचर रखना भी एक बहुत बड़ी एक वर्च्यू वाली बात होती है। और वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस आर, वॉट एवर काइंड ऑफ पीपल आर, है ना, उनके साथ मतलब मैं दुनिया को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन यस मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ। मैं खुद के जो रिस्पॉन्सेस है उसको आई कैन चेंज एंड आई कैन अडेप्ट, दैट इज इन माई हैंड्स। देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज कि हमको कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे मुझे वो गट फीलिंग आई थी। व्हाट इज दैट गट फीलिंग? दैट इज एन इंट्यूशन दैट यू कैरी। तो यू शुड हैव दैट स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बेस, या एक अपना एक इनर स्ट्रेंथ का बेस होना चाहिए कि अगर अंदर से कोई इंट्यूशन आ रहा है तो वो आपको समझ में भी आना चाहिए और उसके ऊपर एक्ट भी करते आना चाहिए। You should be aware about your emotions. You should go in for self evaluation. हमारे SWOT analysis, strength, weaknesses, whatever opportunities you have, जब आती है तब तुरंत उसको हमें ग्रैब करना है ना। और जो थ्रेट्स रहते हैं हमारे लाइफ के, वो उसके ऊपर भी हमें वर्क करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नो मैटर व्हाट, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन, कितनी भी इम्पॉसिबल सिचुएशन आए, you should have that courage to face yourself in to that situation in life. और ये करेज अगर हमको लाना है तो हमारे आसपास ही ऐसे कितने सारे लोग जिनको हमने डे टू डे लाइफ में, जिनके बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, और मतलब there are so many inspirational videos also about inspirational people, है ना। ये सब लोगों को देख करके जिन्होंने बहुत हार्डशिप्स में, और जब उनके पास कुछ भी नहीं था, एंड बहुत मतलब जैसे सिंधुताई सपकाळ, शी इज माय आइडियल, है ना, कि ऑल ऑफ अस वी नो अबाउट द स्टोरी ऑफ सिंधुताई सपकाळ, कि फुल टर्म प्रेग्नेंट उसके पति ने पेट पे मार मार के उसको घर के बाहर निकाला था, एंड शी गेव बर्थ टू द चाइल्ड इन ये श्मशान भूमि में। और वहां पे जो लोग आटा रख कर गए थे उस पे रोटी बना के उसने खुद को फीड किया है, एंड नाउ शी इज द मदर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किड्स। और कितना ज्यादा काम किया, और मतलब उसने वहां पे खुद के लिए या खुद की बेटी के लिए नहीं सोचा, उसने वहां पर विदाउट हैविंग एनीथिंग, उसके पास क्या था, लेकिन उसके पास में एक आइडिया थी, उसके पास में एक कंपैशनेट हार्ट था, शी हैड दैट एम्पैथी कि आज मेरी बच्ची के लिए मैं हूँ, लेकिन ये दूसरे बच्चे हैं जिनको कोई नहीं है, तो शी बिकेम द मदर ऑफ दोज किड्स। और जब हम एक अच्छा काम, एक अच्छी आइडिया लेकर जब काम करते हैं तो बहुत सारे लोग साथ में जुड़ते रहते हैं, और उसका एक स्वरूप अपने आप में एक बहुत बड़ा रहता है। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज, और ये सब चीजों के लिए जब हम बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारी सब जो अच्छी अच्छी चीजें उसके लिए जरूरत नहीं है। All that you need is an initiative, a strong willpower to do these things, and you can definitely achieve that in your life. What moves us? जब हम भी खुद कोई इनिशिएटिव लेते हैं, या हम किसी और को देखते हैं कि किसी ने एक छोटे से हम्बल इसके साथ बिगनिंग की थी, कुछ इनिशिएटिव लिया था, और बाद में जब वो इनिशिएटिव लेके वी आर एबल टू टच टू द लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल, तो that definitely motivates us, that definitely motivates others। फिर हमारा enthusiasm, एक positive attitude, एक optimism हम लोग जब कैरी करते हैं, अंदर से हमको कुछ भी लग रहा है, पर वो optimism वो हमारे फेस से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारी बातों से वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। There should be a deep sense of commitment for yourself, for your home, for your work, for your society and everything, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक एम्पैथी वाली फीलिंग, ये हमको पक्का की मन में रखते आना चाहिए। शुड बी एबल टू पुट आवरसेल्व्स इन अदर पर्सन शूज, एंड स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, जिससे लोगों के जीवन को बहुत पूरा उथल पुथल करके रख दिया है। तो हो सकता कि अगर कोई पर्सन हमारी लाइफ में आ रहा, वो उस समय पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, दे आर रिएक्टिंग, बट वी नीड टू एम्पैथाइज विद देम कि इतने दिनों से ये पर्सन, ही वाज विदाउट द जॉब, ही वाज नॉट अर्निंग, और अभी वो छोटी भी बात अभी लोगों को बहुत ज्यादा इमोशंस ट्रिगर कर देते हैं। So we need to empathize with people. We need to have good listening skills, and we need to have a good understanding mode, because these are the things that definitely help you in achieving those positive emotions. So positive emotions, these are just a couple of things. The joy, फिर gratitude to God, gratitude to all the people जिन्होंने positively हम लोगों के लाइफ को रिफ्लेक्ट किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो होप, वो एक उम्मीद जो है वो हमारे मन में रहना चाहिए, वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए, और वो होप
एक ऐसी बात होती है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां है, यू शुड ऑलवेज हैव दैट पॉजिटिव होप इन योर माइंड कि यू आर गोइंग टू डू इट, और जो भी हम करते हैं उसका यू शुड बी एबल टू डू दैट विद प्राइड, और दैट प्राइड हैज टू कम फ्रॉम विद इन, है ना. फिर इंस्पिरेशन, getting awe of ourselves, our achievements, our the other people's achievements, loving others, and all those things. These are very positive emotions in our life. So thank you so much, Lakshmi Madam, and everybody, all the lovely ladies present here, for giving me this wonderful opportunity to interact with you, to talk to you, and I'll be very happy to address questions from you. Yes. Thank you, sir. Meantime, Dr. Meena, I can see Dr. Arvind Kurade has logged in from overseas. Smita, unko co-host banao so that he can unmute and he can give his comments. Dr. Arvind Okay, ma'am. Kurade, you are most welcome on this platform. So we are making you co-host. You can unmute and then please share your inputs. Yes, Meena, Yes, ma'am. it's Yeah. really inspiring. I'm telling you, I have written living legend word for you. For me, you are a inspiration. I mean, we all have seen, like Arshi Madam has said, about your struggles and how you have come up to this stage. In itself is a very inspiring and motivating stories for everyone to go through and follow your footsteps. So hats off to you. And you have taken and you have tried your level best to increase the EQ of everyone. You have tried to inspire and motivate everyone. So yes, if there are any questions, Meena is here to answer. And Smita, Dr. Yes, Arvind ma'am. ko banao co-host हम. Lakshmi, हाँ, I madam. just I'm one not thing. seeing him actually. Meena, Yeah. when we say that bolave taise chalave, so you have done it the Yes. way you have gone through all your phases, and you are really showing that yes, you are a very good trainer and you have come out of this. So The it is not biggest just- teacher in my life, I would like to acknowledge here, and that is my daughter Rishika. yes, मैं हमेशा मतलब जब हम लोग SWOT की मतलब बात करते हैं तो what was the weakness in my personality, that was कि मेरे पास patience नहीं था. But she is the person कि जिसने मुझे लाइफ में पेशेंस सिखाया. नंबर 2 कि मेरा लाइफ को देखने का जो नजरिया था वो एक पॉजिटिव मतलब, और बहुत छोटी छोटी चीजों में बहुत सारी खुशियां होती है, ये मैंने ऋषिका से सीखा. When she was in 4th standard, और Yes, मैं yes. उस समय पे मतलब she had dyslexia, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं समझती थी, तो उसको सब्ट्रैक्शन नहीं आता था, सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो डिवीजन भी नहीं आता था. और मुझे लगता था कि मतलब आई एम अ डॉक्टर, मैं बहुत होशियार हूँ, है ना, तो ऐसी क्या बात हो सकती है कि मैं उसको नहीं ये सिखा सकती. और मैं उसके पीछे 15-20 दिन में कंटिन्यूसली लगी रही. मैंने बहुत सारे तरीके ऐसे किए कि नो मैटर व्हाट मैं उसको सिखाऊंगी. और फाइनली ऐसे हुआ कि आफ्टर 2 वीक्स उसका एक बहुत बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ और शी स्टार्टेड क्राइंग मिजरेबली. वो मुझे बोली कि मम्मी मुझे नहीं जम सकता, मुझे नहीं जमता है. और उस समय पर मतलब आई फेल्ट सो बैड कि मतलब इसका तो जो प्रॉब्लम है वो है, पर इससे बड़ा प्रॉब्लम किसका था, वो मेरा था. yeah, कि I had not accepted the situation, that was my problem, and this happens in our life. मतलब एक ऋषि और मेरी बात अलग है, पर this happens कि अगर जैसे हम वो situation को accept कर लेते तो उसके बाद में then we try to Then find we out become, creative solutions for that. कि फिर मैंने उसके लिए बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाए, मैंने उसको स्कूल में जाके बोला कि मैं उसको मैथ्स का कोई बर्डन नहीं दूंगी, और ऐसे धीरे धीरे कि 180 to 200 वर्ड्स में आंसर लिखना होता था, मैं उसके लिए 18 to 20 वर्ड्स में आंसर बना के देती थी, क्योंकि वो उसके लिए मैनेजेबल था. और ऐसा करके शी कुड डू हर BSc होम साइंस. मैं yeah. उसको जब ABCD सिखाती थी तो मुझे लगता था हम Z तक भी पहुंचेंगे नहीं. मैंने वहां से ऐसे शुरुआत की थी, पर देन ऐसे मतलब शी इज द बिगेस्ट टीचर इन माय लाइफ, एंड शी मतलब whatever Meena is today, that is because of Rishika only. ऐसे. So you are supporting each other. That is very हाँ, important. तो Yeah. I'm so proud to You- be हाँ. Rishika's mother. ऐसे कोई सवाल ही नहीं Yeah. होता. Yeah. Good. Smita, can you see any questions for Meena? Pardon, ma'am? No, ma'am. Meena I के can't लिए- see any question. Ma'am, there is one question from Shubhda ma'am, I think. Shubhda Khirwalkar ma'am has Yes. हाँ,
the chat. मैडम ने यूएसए से लॉगिन किया है हमारा सेशन. हाँ, she woke up at 4 o'clock. Mom has I put know. alarm for it, and mom, you can. Shivda, welcome from USA. Good evening. Good evening, madam. Ma'am, can you unmute her because you are host now. मैं होस्ट बना दिया कि तुमने हाँ, मैंने हाँ, सबको मैम, ही मुझे वो, unmute कर देती हूँ. Right. हाँ, देखो हो गया. हाँ, now you can unmute. Yes, ma'am. Yeah, so nice to see you all. And I had told Smita that I would set up an alarm and join, and I have kept that Carol, I promise. think you can stop na recording. है ना, Smita? Session is Yes, over. ma'am. हाँ. Okay. So Dr. Meena, excellent session, and you have deciphered emotional intelligence so well. I just wanted to ask a question regarding typically adolescents, because I deal with them a lot. So many times when we give inspiring examples to them, they say ये तो अलग life था, वो तो अलग situation है, मेरी life अलग है. तो ऐसे inspiring examples, do they really help? That is my question. Yeah, inspiring examples, inspiring friends, है ना. और वो कैसे रहता है कि एक small series of examples ये देना चाहिए. मतलब कैसे अजीज खान की सब लेके जा. अगर किसी का मतलब कोई ऐसे प्रॉब्लम है, मतलब कि अब जैसे आपके पास वो एडोलेसेंट आया है, अभी हो सकता है कि उसका एक पर्टिकुलर सिचुएशन है विच ही इज गोइंग थ्रू, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है विच ही इज गोइंग थ्रू. तो द एग्जांपल्स दैट वी गिव टू दैट चाइल्ड शुड बी मतलब मैचिंग विद द एग्जांपल ऑफ सम अदर पर्सन, है ना. कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो ड्रग्स लेने लगा है या और किसी भी चीज से, या फॉर एग्जाम्पल कि उसका एक लव अफेयर है, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि एडोलेसेंट लाइफ में यही सब ऐसी बातें हैं कि या तो उसने अचीव नहीं किया है ना. तो व्हाट वी शुड बी एबल टू डू इज कि वी शुड प्रोवाइड हिम सुटेबल एग्जांपल्स व्हिच फिट हिज सिचुएशन द मोस्ट, है ना. और उसमें फिर हम लोग एग्जांपल्स दे सकते हैं, कुछ छोटी छोटी मूवी क्लिप्स ऐसे वो भी हम उसको दिखा सकते हैं, है ना. Okay. So you think they help? Yeah, definitely they help, and even they help us also as elders also. जब भी हम किसी से कोई अच्छी बात सुनते हैं, कुछ करते हैं, तो we are also inspired, है ना. तो everybody is inspired by that. बस सिर्फ ये है कि वहाँ पर एक तो कि कौन सा तरीका उसको ज्यादा अपील करेगा, क्योंकि एडोलेसेंस एक ऐसी एज रहती है कि जिसमें मतलब पीयर ग्रुप दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना. तो वहाँ पर हम लोग उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स है, क्योंकि वो एज में पेरेंट्स को सुनने का उनका मन बहुत ज्यादा रहता नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि आइदर यू फॉर्म अ वेरी फ्रेंडली रैपो विद देम, है ना, या यू कैन टेक हेल्प ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स जिनका उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है. तो वैसा एक थोड़ा सा ग्रुप एक्टिविटी या 2-3 फ्रेंड्स का हेल्प लेके भी आई थिंक दैट शुड हेल्प देम. Thanks a lot. Ma'am, there is one Thanks. question. Meena, ma'am, there is one question. Yeah. That's, ma'am, how do we deal with negative people in our life, especially when they are a part of family? ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन रहती है, क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, बट देन व्हाट इफ दे आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना. तो वहां पर भी अगेन ऐसा है कि उसमें वी शुड बी एबल टू अपने आप को हम उसमें से कितना बचा के रख सकते हैं, मतलब कि वो बात कितनी हमारे मन के ऊपर हावी होना चाहिए, दैट यू नीड टू डिसाइड. अब अगर वो कितने भी क्लोज पर्सन से कुछ है, धीरे धीरे मैंने वही बोला कि द वे वी रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज व्हाट वी सी इज द रिएक्शन इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग, क्योंकि उसके नीचे बहुत कुछ खेल हो रहा होता है. बट देन फाइनली द बॉटम लाइन इज कि you need to have a very happy state of affairs. You need to take charge of your own life, because you live your life only once. तो हम लोगों ने कोशिश तो ये करना चाहिए कि हम वो पर्सन को थोड़ा मोटिवेट करके, थोड़ा पॉजिटिवली थोड़ा उसको ये कर सकते हैं. पर अगर वो बहुत लंबा स्ट्रेच होते गया, so then we need to move away from the negative influences.